ओके, चलिए हम वेट करते हैं डॉक्टर अनायत का। लेट हिम फिनिश हिज प्रेयर तो फिर स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल एनीथिंग anybody wants to discuss or ask about anything? आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. Good, that's good. So no need to discuss anything else, right? We should start on agenda setting. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Let's start here. अब हम we are losing 4 or 5. अभी तक हमारे पास आप स्टूडेंट्स नहीं आए हैं आपके friends. So again, this triangle will live with us unless and until we'll finish this whole module. So this triangle is here. So now the it's till now we have discussed everything about this triangle. Okay, how does this triangle work? What is the purpose of this triangle? जब तक हमारे पास ये triangle होता है, it's easy for us to make all these policies or to understand all these policies, evaluate or discuss anything about all these policies. अब हम ये देखते हैं कि पॉलिसी प्रोसेस क्या है। मीनवाइल मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एक एक उसको हम सेपरेटली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आई विल सेंड यू द बुक एज वेल। यस्टरडे मैं देख रही थी कि बुक अभी तक मैंने अपलोड की है तो वो आप लोगों तक पहुंची नहीं है समहाउ, क्योंकि ड्राइव से जो है वो चीज़ें अपलोड इतनी इजीली हो नहीं रही हैं। तो मीनवाइल मैंने बाकी सारे लेक्चर्स कर दिए हैं अपलोड। अच्छा, पॉलिसी प्रोसेस क्या है? इसमें क्या होता है कि दिस इज एज आई हैव टोल्ड यू कि दिस इज द वे और दिस इज a step by step procedure जिसमें policies are initiated, developed, formulated, negotiated, communicated, implemented and evaluated as I have told you earlier. अब इसको ही अगर आप एक सर्कल की शक्ल में देखें तो इट गोज राउंड एंड राउंड, क्योंकि आफ्टर एवरी इवेल्युएशन हमें फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है तो देन वी रीस्टार्ट अगेन थिंग्स। एजेंडा सेटिंग क्या आता है हमारे पास? व्हाट इज एजेंडा सेटिंग? तो एजेंडा सेटिंग इज अगेन एज आप लोगों ने को every day maybe you are hearing or learning there are this word again and again कि जी उनका तो कोई एजेंडा ही कुछ और था, they were thinking about something else, there is some kind of hidden agenda going on. So the agenda means things to be done or things needs to be addressed, or this the some kind of problem which needs to be identified, or you can see a plan or list of activities to be done. It is a process through which certain issues are highlighted among the others, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। और sometimes आप जैसे कह सकते हैं कि जैसे there is a hidden agenda, और every time आप में से कितने ही लोग होंगे जो किसी एनजीओ के साथ काम कर रहे होंगे, so before that, there was a concept or there was a thinking that there is a hidden agenda behind every kind of these policies. Still now, आप पोलियो एरेडिकेशन को देख लें कि they think there is some kind of Western hidden agenda behind it. Or even though whenever they are giving iodized salt, they think there is a hidden agenda behind all these public health की जितनी भी efforts हैं उनके पीछे। सो एजेंडा सेटिंग कैसे हो सकती है? एजेंडा सेटिंग जब हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और फिर उसके बाद हमारे जो जितने भी लोग होते हैं, सपोज इन आवर क्लास देयर आर 20 और 25 स्टूडेंट्स आर हियर, एंड सो वी कैन थिंक अकॉर्डिंगली कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है और उन सारे प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। 24 पीपल आइडेंटिफाई 24 डिफरेंट प्रॉब्लम्स, एंड when we discuss all these problems, हम 24 और 25 people will think कि नहीं, जो 5-6 problems इनसे हैं they need to be addressed now, और जो बाकी के हैं उनको हम sideline कर देते हैं और we will address them later. So इनमें क्या होता है कि collection of problem, understanding of causes, symbols होते हैं, solution and other elements of public problems to come to the attention of members of public and their governmental officials.
सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हम 24, जैसे मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में सुनाया कि वी आर 24 or 25 sitting in a room, and doctors and some economist or somebody, as your class is full of different people which belongs to different backgrounds. So we have different problems, or we think that these problems are important and they need to be addressed. तो हम इन सारे problems को simultaneously one by one बोलते हैं, बताते हैं, और इनमें से जिसकी भी एडवोकेसी स्ट्रांग होती है, वो विन करता है। इट कम्स ऑन द ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट कि हम इसको पहले एड्रेस करेंगे, देन विल गो डाउनवर्ड्स एंड विल एड्रेस ऑल द प्रॉब्लम्स। Why and how do issues get in a policy agenda? Yes, please, if somebody was saying something. अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास किस तरह से एजेंडा इश्यूज एजेंडा में आते हैं। सोशल कंस्ट्रक्शन, इसमें मैंने अर्लियर भी आपको कहा था कि कुछ हमारे पास सोशल कंस्ट्रक्चुअल फैक्टर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोशल, जैसे भी जो हमारे पास, या जो हमारे पास जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं उनकी फॉर्म में। सोशल कंस्ट्रक्शन रेफर टू द वेज इन विच वी एज अ सोसाइटी एंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी जो होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं, जो जिनकी बात को सुना जाता है, दोस्त हु अंडरस्टैंड, और जिनको दे से, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कि वो जो है फिक्स इट वाला आदमी है, आप उसको समझ लें कि ही इज अ पर्सन हु आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम। कि हमारे पास जो है कराची में मेन प्रॉब्लम क्या है कि the main holes are opening and inviting every day and day to day different type of accidents go. So we need to address it by putting lids on it. So that's how they make the things, or talk about the issues, and the way they need to be addressed. Okay. इसमें सबसे बड़ी जो एग्जांपल आती है हमारे पास, वो ये आती है कि गसफील्ड एक बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट थे। उनकी काफ़ी सारी बुक्स और आर्टिकल्स आपको मिल जाएँगे, किसी भी आप रिसर्च इंजन पे जाएँगे तो। Argues that the highway deaths associated with the alcohol consumption can be interrupted as a problem of। अब आप देखें कि वेस्टर्न सोसाइटी में जो हाईवे में डेथ्स होती हैं, उनको आप ये कैसे, उनको जो है ना, आप डिफरेंट फॉर्म्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कह देते हैं कि जो हाईवेज डेथ्स होती हैं वो इररिस्पॉन्सिबल ड्रंकन ड्राइवर्स होते हैं, दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, उसको हम अनदर वे ऑफ इंटरप्रिटेशन भी होती है ना, कि हम उनसे ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज ओवरली डिपेंडेंट ऑन कार्स। हमें कार्स को छोड़ के तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम शुरू करना चाहिए कि आफ्टर ड्रिंकिंग दैट दे शुड नॉट ड्राइव एंड दे शुड यूज सम काइंड ऑफ अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होना चाहिए वो। सेकेंडली, हमारा जो हाईवेज का डिजाइन है, इट्स वेरी पुअर, सो इट इज in the form of loops, or it may be it is a straight line, so people tend to drive very on a high speed. इसका मतलब ये कि एक प्रॉब्लम को डिफरेंट लोगों की परसेप्शन कितनी ज्यादा होती है। नेक्स्ट कम्स एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन ड्रिंकिंग इन एडल्ट सोशल लाइफ। अब आप इन दो जो है ऊपर वाले जो हाईलाइट हुए हैं, उनमें एक ही चीज को हम हाईलाइट कर रहे हैं, और वो ये होता है कि ड्रिंकिंग इज बैड, ड्रिंकिंग इज द मेन रीजन for these kind of accidents. लेकिन अब आप देखें, मैंने every problem in a different way. Some people इसको इस तरह से लेते हैं कि definitely irresponsible behavior है किसी भी ड्राइवर का, कि that he or she drives after drinking. लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे भी transportation का system, somebody else will get the एजेंडा सेटिंग के हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। उनमें सबसे पहले होते हैं पॉलिटिक्स एज यूजुअल सर्कमस्टांसिस, क्राइसिस और टैक्सेस होते हैं। नंबर 3 पे आता है किंगडम्स मॉडल, और नंबर 4 पे आता है हॉल्स मॉडल। किंगडम और हॉल के मॉडल, सारे मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे। किंगडम और हॉल के मॉडल्स जो हैं वो यूजुअली हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं व्हेनेवर वी आर सेटिंग एन एजेंडा। Political as usual circumstances क्या होते हैं? Problems are presented in objective terms and they wait to be recognized by the government in a way they are perceiving things
लाइक यू हैव टू सिट एंड वेट कि आपकी बात सुनी जाए, या आप इस किस तरह से अपने आप को एडवोकेट करते हैं, कि आपकी लॉबिंग कैसी होती है, दैट दैट जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं उन तक आपकी बात पहुंच जाए। प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट, हम कौन डिसाइड करता है कि दिस इज द मोस्ट फिजिबल प्रॉब्लम, वो डिसीजन आप आपके अथॉरिटीज करती हैं, और डिपेंड होता है कि आप उसको किस तरह से एडवोकेट करते हैं। Recognition of a problem by government depends upon the boundaries of normal and unacceptable in a society. Again, that's what I'm saying. The way you perceive it, कि आप किसी चीज को कह देते हैं कि नहीं ये तो it's not normal, कि if you behave it in a way, the way people usually behave, कि अगर आप कहें कि जी जैसे fix it, the person who was fixing these gutters or these small जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे डे टू डे लाइफ के, उनको अब उन उसके और उसको मे बी ही फाइंडिंग दैट दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ हैविंग डे टू डे ट्रॉमा एंड डेथ्स, और सम पीपल से कि इससे क्या फर्क पड़ता है, दैट्स व्हाई दे वर टेकिंग ऑल दीज lids from the gutters or all these things, कि कौन सी क्या चीज किसके नॉर्मल हो सकती है और किसके अनएक्सेप्टेबल हो सकती है। ये था पॉलिटिकल एज यूजुअल सर्कमस्टांसिस का मॉडल। अब हमारे पास आ जाता है क्राइसिस एंड टैक्टिक्स का मॉडल। हमारे पास आ जाता है a serious is real and could be disastrous. Our definition of crisis changes may change from place to place. Mostly government to introduce a new concept. अब आपने जो मैंने आपको भेजा था अभी एक सिनेरियो ऑफ बांग्लादेश, उसमें आपने ये देखा था कि उसमें जो बांग्लादेश का उस वक्त जो पावर में जनरल था, उसका एक फ्रेंड होता है जिसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, सो ही इज मेकिंग दीज थिंग्स इन अ वे कि उसके जो जो फार्मास्यूटिकल फर्म है उसकी जो फ्रेंड की है, उसको मोस्ट बेनिफिट हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ही वाज इन पावर एंड ही वाज थिंकिंग दैट व्हाई डू वी गेट ऑल दिस medicines from outside or abroad or from something like this, why don't my friends pharmaceutical company makes it. सो वो इस किस्म की सिचुएशन से बिल्ट होती है कि वो एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर देता है, विच यू कैन सी इन दिस बांग्लादेश वाले सिनेरियो में। अच्छा, अब हमारे पास तीसरा मॉडल आता है, वो है हॉल का मॉडल। ठीक है, हॉल ने जो मॉडल बताया उसमें तीन चीजें आती है, एक होती है लेजिटिमेसी, एक होती है फिजिबिलिटी और एक होती है सपोर्ट। जब लेजिटिमेसी, फिजिबिलिटी और सपोर्ट तीनों जो लाइंस हैं वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर आपको वो वाला जो पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। Characteristics of issues with which government believes they should be they obligation to. Ab legitimacy, as the name indicates, is an okay, investment मैम can't hear issues you मैम, कैरेक्टर होते आपकी हैं आवाज कि में बहुत लैग है मैम। आप मैम can't hear you। मैम काफी डिस्टॉर्शन है। एक मिनट में इसको ना मैम आवाज नहीं आ रही। आ रही है आपको आवाज? नाउ यू कैन यू हियर मी नाउ? यस मैम, अब सही आ रही है। चलिए ठीक है, थैंक गॉड। अच्छा, अब हम कहाँ पर थे? लेजिटिमेसी पे।
Legitimacy, as the name indicate, कि legitimate हम जैसे हम कहते हैं कि it was legitimate to do so, so it was important to do so. It is the जैसे it and also again हमेशा हर प्रॉब्लम मेरे लिए अगर कोई चीज़ एक प्रॉब्लम है तो मे बी वन ऑफ यू सेज कि नहीं ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है एंड मैम इज थिंकिंग अदरवाइज, ठीक है, और मे बी आपके लिए जो चीज़ प्रॉब्लम हो मैं उसको कहूँ कि नहीं यू आर मेकिंग इट एज अ प्रॉब्लम बट इट्स वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन, राइट? तो ये वही चीज़ होती है कि जो लेजिटिमेट प्रॉब्लम्स होते हैं, ये जो लेजिटिमेसी होती है, इट डिविएट्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम द सोशल डेमोग्राफिकल जितने भी हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. So it is also depending upon the socio-economic, as I have told you, जो socio-economic condition है, education, religious backgrounds, and so much and so many other things के उनके ऊपर ये depend कर रहा होता है. फिर हमारे पास आ जाती है फिजिबिलिटी और सपोर्ट क्या होती है. अब ये हमारे पास लेजिटिमेसी के फैक्टर्स आ गए हैं जिनको हमने पॉलिसी मेकिंग का एक लाइन कंसिडर आप कर लें, राइट? फिर जो सेकंड और लाइन होती है वो फिजिबिलिटी की होती है और थर्ड लाइन सपोर्ट की होती है. अब हमने इन तीन लाइंस को अलाइन करके एक जगह पर लाना होता है, इन वन पॉइंट पे हमने लाना होता है सो दैट एवरीबडी एग्रीज टू इट और फिर हम उसके ऊपर एक पॉलिसी प्लान करते हैं. अब फिजिबिलिटी क्या है? फिजिबिलिटी इज द प्रेजेंस ऑफ रिसोर्स लाइक फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी. अगेन और सपोर्ट क्या आती है इसमें? सपोर्ट इज द कंसेंसस अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी. अब आप इस जगह आकर भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर वो जो स्टेक होल्डर्स हैं जो उनकी उनकी सपोर्ट होती है वो किसी एक जगह आकर इकट्ठी हो जाए. वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं. The lack of support is a major hindrance in policy process. अब जिस जगह किसी जगह पर उन लोगों की जैसे इंडिविजुअल्स की सपोर्ट नहीं होती है, लाइक आई हैव टोल्ड यू देयर आर सो मच एंड सो मेनी हमारे पास हेल्थ की पॉलिसीज होती हैं जो महज इस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती कि कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स, कुछ ऐसे हमारे पास सिविल सोसाइटी के फेमिनिस्ट ग्रुप्स होते हैं जो किसी एक जेंडर की तरफ बायस होते हैं. कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अगेंस्ट और एंटी उस चीज़ के उस स्पेसिफिक पॉलिसी के लिए काम कर रही होती. सो दीज आर द मेन हिंड्रेंसेस होती हैं. तो उनको उस चीज़ को जब कोई सपोर्ट नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली वो पॉलिसी तो फर्स्टली तो बिल्ड नहीं हो सकती, सेकेंडली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती. अब हमारे पास आ जाता है किंगडम का मॉडल. किंगडम ने क्या कहा है कि थ्री स्ट्रीम्स का, उसको कहते हैं किंगडम का थ्री स्ट्रीम्स का मॉडल होता है. एक प्रॉब्लम की स्ट्रीम होती है, एक पॉलिसी की स्ट्रीम होती है, एक पॉलिटिक्स की स्ट्रीम होती है. अब आपने देखा ये ऐसी टेरी मेरी सारी आती हैं और कहीं जाकर वो जहाँ एक मिलती हैं और फिर वहां से मिलके कोई एक एक्शन प्लान समझ जाता है. अब क्या होता है कि किंगडम्स फ्रेम इज मेड अप ऑफ थ्री कोर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज. और उसके साथ क्या होता है? पॉलिसी विंडो होती है. अगर इफ कीपिंग इन माइंड, क्योंकि अब आपने वो पढ़ लिया हुआ है बांग्लादेश का वो वाला सिनेरियो जो मैंने आपको भेजा था, उसमें आपने देखते होंगे कि पॉलिसी में विंडो कहाँ से अपीयर होती है? जब गवर्नमेंट चेंज होती है. आपने ये देखा है ना, जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है एक विंडो अपीयर होती है कि ओ माय गॉड, अ न्यू पॉलिसी कैन कम नाउ. उस जगह को पॉलिसी विंडो कहते हैं. और पॉलिसी विंडो जैसे ही अपीयर होती है उस वक्त हमेशा पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं. तो ये होते हैं पॉलिसी विंडो इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू डील विद अ पर्टिकुलर इशू इन डिफरेंट वेज. जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर हम उस सिनेरियो को उसमें रखें और सेम गोज हेयर, पॉलिसी विंडो सिंपली इज एन अपॉर्चुनिटी कि जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है. जैसे अब इस पैंडेमिक में पाकिस्तान को थोड़ा सा एज मिला है कि हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ थी जैसे जो पीपीआईज हैं वो बनाने की, तो अब हम इन्हें इंपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं. यहाँ पर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ये मिली है कि व्हेन वेंटिलेटर्स आर लैकिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड तो पाकिस्तान में बनने शुरू हो गए. सो Ma'am, can't hear you.
द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अपीयर्स कि हम उनको एक्सपोर्ट कर सकें, अदरवाइज एक्सपोर्ट मार्केट में पाकिस्तान को जगह बनाना शायद मुश्किल हो जाता। सो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। Of convincing policy decision makers to pay attention to one problem, some international events. अब आप मुझे स्ट्रीम की शक्ल में आते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंगली एक हेल्थ पॉलिसी बना सकते हैं। कैन एनीबडी आइडेंटिफाई एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल इवेंट? आप में से कोई बता सकता है कोई? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्वेश्चन नहीं पता। अच्छा, मैंने कहा अब आप ये मैं बता रही हूँ कि इसमें जो है ये किंगडम मॉडल में जो प्रॉब्लम स्ट्रीम है उसमें इंटरनेशनल इवेंट्स का मैं पूछ रही हूँ कि आप बता सकते हैं कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स हैं? हेलो, हेलो, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? यस मैम। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इंटरनेशनल इवेंट्स कौन से होते हैं जिसको हम प्रॉब्लम स्ट्रीम में लाते हैं? आयजा कितनी लंबी गई थी। हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही? आई थिंक इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं ऐसी चीजें जैसे हमारे पास कोई नया फॉर्म ऑफ अभी तक खत्म नहीं की वायरस इंट्रोड्यूस हो जाता है तो हम हेल्थ पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंगली डेवलप करते हैं। जैसे हमने यहाँ से जाते हुए हम कहते हैं कि जी एक आपने ट्यूबरकुलोसिस का एक टेस्ट करा के आने, बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के जो हैं वो बैक्टीरियाज राइज हो रहे हैं सम पार्ट ऑफ द कंट्री, सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलिसी स्ट्रीम, represent the process by which the policy are generated, debated, revised and adopted for serious consideration. ठीक है? हेलो, हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही? यस मैम, यस मैम, आ रही है मैम, अब आ रही है। आई डोंट नो, हालांकि मैंने इसका नेटवर्क भी चेंज कर दिया बट स्टिल सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम चल रही है। यही तो इंटरनेट की प्रॉब्लम्स होते हैं। एनीवेज, यहाँ पर आकर हमारा किंगडम मॉडल खत्म हो जाता है, प्रॉब्लम स्ट्रीम, पॉलिसी स्ट्रीम आ जाती है हमारे पास, और जहाँ पर ये तीनों स्ट्रीम्स आकर ज्वाइन होती है वहाँ पर हमारे एक पॉलिसी मेकिंग का सिस्टम डेवलप हो जाता है। एक्शन, ठीक है? ये हमारे पास एजेंडा सेटिंग का एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। So far we are clear here. Yes मैम, yes मैम। Any questions related to it are most welcome. And next time we'll step into implementation. Oh my god. ओके मैम, ओके मैम। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको इम्प्लीमेंटेशन तक मैं पढ़ा दूँ तो फिर मैं इम्प्लीमेंटेशन को इंक्लूड कर लूँ मिड टर्म के एग्जाम में। ओके मैम, अभी तक जितना पढ़ा वो सब इंक्लूडेड है? सब इंक्लूडेड है, और पॉलिसी के जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें प्लीज माइंड में रखिए कि सिनेरियो होता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द सिनेरियो। ओके मैम, ओके मैम। ओके देन, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तो मीनवाइल आप लोगों को जो भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके SCR जो है वो मुझे बता सकते हैं, तो वी कैन अरेंज अकॉर्डिंगली एनी काइंड ऑफ मीटिंग। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच मैम, टेक केयर मैम, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम।